Hello everyone, this is Mukesh Sharma, PGT Accountancy. I welcome you in Guda International School, Guda Gorji online classes. Before starting my topic, I want to explain something else. प्रेम के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। हमारी स्कूल या मैं या आप लोग तीनों में से किसी की भी बात करें, जब तक अपन लोग अपने वर्क से अपने काम से प्रेम नहीं करेंगे तब तक अपन को सफलता नहीं मिल सकती। प्रेम की सच्ची परिभाषा भगवान कृष्ण ने दी है। कृष्ण और राजा का प्रेम की एक घटना आपको बताता हूं, उसके बाद अपन टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। राजा कृष्ण साथ में थे। जब कृष्ण राधा जी को छोड़ के जाने लगे तब राधा जी ने कहा, आप या इन नयन में मैं नजर ढाप लूँ तो है, ना मैं देखूँ गेर को ना तो है देखने दूँ। आप या इन नयन में मैं नजर ढाप लूँ तो है, ना मैं देखूँ गेर को ना तो है देखने दूँ। जो हाथ छुड़ावत जात है निर्मम जान के मोह है, हृदय से तू जाए तो मैं भी जानू तो है। हाथ छुड़ा के तो जा सकते हो आप, लेकिन हृदय से नहीं जा सकते। इस अटूट प्रेम को ही अपन लोगों को अपने पैशन में लगाना, अपने वर्क में लगाना है। मैं अपने वर्क टीचिंग को प्रेम करता हूँ, जीआईएस आप लोगों को प्रेम करता है, इसलिए हर संभव आप लोगों की कैसी भी परिस्थिति आप लोगों को अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही आप लोगों को अपने वर्क से प्रेम करना है और अपन लोगों को उस सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना है जिसके लिए जीआईएस आप लोगों के लिए तत्पर है, प्रयास कर रहा है। लेट्स मूव on our topic. Today's topic is types of account. At the time of explaining this topic, types of account, first we divide account in two categories. First one is personal account and second one is impersonal account. Personal account means account that is related with a person is known by a personal account. Account that is not related with any other person, not related with person, that is known by impersonal account. Personal account is also classified in three categories. First, I explain personal account. Personal account means account that is related with a person is known by personal account. Now we divide this account in three categories. First one is natural personal account, artificial personal account, and representative personal account. Natural personal account means you and me, like Ram, Mohan, Sohan, Sita, Geeta, Babita, Anita, and extra. Example of natural personal account: Ram, Mohan, Babita, Anita, and extra. All are them a real person, that is natural personal account. Next one is artificial personal account. Artificial personal means a person that is created by us, like a company, industry, firm, any organization. Artificial person means a person that is make the work like natural person. Like we can purchase anything, we can sell anything, we make an agreement with other person. Same as natural person, artificial person can be purchase, sale, like Guda International School. Guda International School can be purchased on the behalf of GIS, Guda International School. Guda International School can be sold anything as the name of GIS. Guda International School can be make any agreement and contact with other also. That is included in them artificial. Company like Reliance, industry, firm, organization included in the artificial personal account. Third one is representative personal account. Representative personal account means a account that represent to a person included in the representative personal account. Representative personal account, for example, capital. Capital represent to the owner of the organization. Drawings, capital drawings, outstanding salary expenses, outstanding
accrued income, unearned income, prepaid expenses and extra are included in them representative personal account. Okay, then first one is personal account. Personal account can be classified in three categories: natural person like us, and second one is artificial person. Artificial person means a person that is created by natural person, and it can be purchased and sell anything like company, industry, firm and organization. Representative personal account means account that represent to a person is known by representative personal account. It include capital represent to a business owner, drawings, outstanding expenses, accrued income, unearned income, prepaid expenses and extra. After personal account, second one is impersonal account. Impersonal account is also can be classified in two categories. First one is real and second one is nominal account. First one is real account and second one is nominal account. In real account means account that is related with a things like building, machinery. It is example of a real account. A real account is also can be classified in two categories. First one is tangible real account. Second one is intangible. Tangible means anything that can be touch, feel or see by us is included in the tangible real account, like building, machinery, furniture, machinery, building, machinery, furniture, stock, goods, cash, including the tangible real account, because we can touch to the building, we can see to the building and machinery, furniture and extra. Next one is intangible real account. Intangible real account means an account that cannot be touched, that cannot be seen, but we can feel it. That is included in the intangible real account, like goodwill, patent, copyright and trademark. This is the logo of LG. We can see, but we cannot touch to the LG logo of LG. Means this is not the real tangible real account, but it is intangible real account. इसको अपन लोग टच नहीं कर सकते, बस अपन इसको फील कर सकते हैं. So it is included in the intangible real account. Next one is nominal account. In nominal account, we divide this account in two categories. First one is loss and expenses. Second one is income and gain. यदि बिजनेस में कोई लॉस होता है, एक्सपेंसेस होता है, तो वो किस में आएगा? इस कैटेगरी के अंदर. जैसे अपन एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो एक्सपेंसेस कोई भी गुड्स वगैरह परचेज करेंगे, देन परचेज, सैलरी, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड एंड एक्स्ट्रा. इनकम की बात करते हैं, तो इसी तरीके से परचेज किया तो अपने लोगों के लिए एक्सपेंसेस था, जब सेल करेंगे तो अपने लिए इनकम होगी. सैलरी जब पे की तो अपने लिए एक्सपेंसेस था, यही सैलरी रिसीव करोगे, कमीशन रिसीव करोगे, रेंट रिसीव करोगे, तो ये सब क्या होगा? अपने लिए इनकम होगी. इनकम को अपन लोग यहाँ पे शो करेंगे, रेंट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड. ये सारे पोर्शन किस में आएंगे? इनकम एंड गेन के अंदर नॉमिनल अकाउंट का पोर्शन रहेगा. वापस से एक छोटा सा रिवीजन आप लोगों को करवा रहा हूं. टाइप्स ऑफ अकाउंट में अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया. फर्स्ट तो था वो था पर्सनल अकाउंट, सेकंड है वो है इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट दैट इज रिलेटेड विद ए पर्सन इंक्लूडिंग द पर्सनल अकाउंट. जो पर्सन से रिलेटेड है उसको अपन पर्सनल अकाउंट में काउंट करते हैं. पर्सनल अकाउंट को अपन ने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया: नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. नेचुरल पर्सन जैसे अपन लोग हैं,
राम है, मोहन है, सोहन है, जो भी अपने आसपास में आप लोगों को जो पर्सन नजर आ रहे हैं वो सब नेचुरल पर्सन के कैटेगरी में ही आते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन अपन लोगों की तरह नहीं है, लेकिन वो एक पर्सन की तरह वर्क कर सकते हैं, एक पर्सन की तरह परचेज करना, सेल करना, गुड्स को कर सकते हैं, अपने नाम पर एग्रीमेंट कर सकते हैं, उसे अपन आर्टिफिशियल पर्सन में करते हैं। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी की अपन बात करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी के अंदर रिलायंस की बात करें तो अपन लोग रिलायंस से एग्रीमेंट कर सकते हैं, रिलायंस से कोई गुड्स वगैरह परचेज कर सकते हैं, गुड्स सेल कर सकते हैं। तो वो जो एग्रीमेंट हो रहा है वो किसी एक पर्सन से ना होके एक कंपनी से हो रहा है। वो कंपनी क्या कर रही है, पर्सन की तरह वर्क कर रही है, तो उसे अपन लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में काउंट करेंगे। और उसके बाद थर्ड कैटेगरी थी दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर अपन लोग क्या करते हैं, ए अकाउंट दैट रिप्रेजेंट टू ए पर्सन, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे, ऐसे अकाउंट को अपन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे। जिसका फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया था कैपिटल। कैपिटल के अंदर क्या होता है, जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है उसे कैपिटल बोलते हैं। अब वो अमाउंट जो बिजनेस में आई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ओनर को, बिजनेस के ओनर को। तो कैपिटल क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सेम ऐसे अपन बात करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेसमैन यदि बिजनेस से वापस विड्रॉ करता अमाउंट उसको पर्सनल यूज के लिए चाहिए तो उसे अपन ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स भी किसका एग्जांपल हुआ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का, क्योंकि वो भी वहां पे बिजनेसमैन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल जब इंट्रोड्यूस किया तब रिप्रेजेंट किया, ड्राइंग्स जब विड्रॉ कर रहा है तो रिप्रेजेंट करेगा। कैपिटल हुआ, ड्राइंग्स हुआ। उसके बाद मैंने बताया आउटस्टैंडिंग सैलरी। जैसे मान लीजिए मैंने पूरी स्टाफ को सैलरी दे दी, एक इंडिविजुअल एक सा पर्सन है, मान लीजिए मोहन को सैलरी नहीं दी, तो अब वो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसकी है, मोहन की। तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मोहन को, इसलिए वो किस में आएगी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। और ओनली सैलरी पेड की बात करेंगे तो वो किस में आएगा, सैलरी पेड आएगा नॉमिनल अकाउंट के अंदर, क्योंकि अपन लोगों ने सैलरी ओवरऑल हेड पूरा एक्सपेंसेस अपन लोगों की बात करें तो। ये तो बात हुई पर्सनल अकाउंट की। फिर अपन ने बात की इम्पर्सनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट नहीं है वो क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट दैट इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्सन इंक्लूड इन द इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो रियल और दूसरा नॉमिनल। रियल का मतलब किसी भी वस्तु की बात हो रही है, कोई गुड्स की बात हो रही है, कोई थिंग्स की बात हो रही है, तो अपन इसको रियल अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। अब रियल को भी अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट तो क्या था, टेंजिबल, और सेकंड क्या था, इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या हुआ, जिसको अपन टच कर सकते हैं, जिसको अपन देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं। जैसे आसपास में अपने यहाँ पे बिल्डिंग है, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, अब ये मार्कर में टच कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, तो इसको अपन लोग टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर इंक्लूड करेंगे। टेंजिबल रियल अकाउंट, इसके अंदर क्या आएगा, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कार, बाइक, ये सारी चीजें जो भी आप लोगों को आसपास में नजर आ रही है, चेयर, ये सारी चीजें किस में आएगी, रियल अकाउंट, और वो भी किसमें, टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर। सबसे पहले ये ध्यान रखना, जब तक अकाउंट समझ में नहीं आएंगे तो आप लोग उसको कैटेगराइज, उसके रूल वगैरह इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो अकाउंट का पता होना ही चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं टेंजिबल के बाद में इनटेंजिबल। अपनी गुड्स तो है, अपनी थिंग्स है, लेकिन अपन उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको अपन किस में इंक्लूड करते हैं, इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर। इनटेंजिबल में सबसे पहले गुडविल। गुडविल जैसे हो सकता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो मेरी अच्छी गुडविल हो, मैं अच्छा नहीं पढ़ाता तो हो सकता है मेरी नेगेटिव गुडविल हो, लेकिन उस गुडविल को मैं देख नहीं सकता, उसको मैं टच नहीं कर सकता, उसको छू नहीं सकता, बस फील कर सकता हूं कि गुडविल कैसी है। अकाउंट के अंदर इसकी भी वैल्यूएशन होती है, तो उसको अपन लोग इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर इंक्लूड करेंगे। इनटेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर सेकेंड है वो है पेटेंट। पेटेंट का मतलब मान लीजिए कोई एक फॉर्मूला वगैरह मैंने क्रिएट किया, मैं उसको पेटेंट करवा देता हूँ तो वो मेरे नाम पे चलेगा, उसको अपन लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। कॉपीराइट, मान लीजिएगा जैसे 3 इडियट मूवी बनी थी, ठीक है, 3 इडियट में कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो चेतन भगत की बुक से लिए हुए हैं, तो उससे पहले परमिशन ली होगी कि भाई आपकी जो बुक का कंसेप्ट है, स्क्रिप्ट है, उसको हम लोग कॉपी कर रहे हैं, तो उसके लिए पहले परमिशन लेकर फिर कॉपीराइट किया उसको, तो उसको अपन लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। कॉपीराइट के अंदर ट्रेडमार्क, मैंने आप लोगों को बताया था हर एक चीज का लोगो होता है, जैसे इस मार्कर के अंदर भी कुछ ना कुछ लोगो जरूर दिया हुआ होगा, तो वो क्या है, इस मार्कर का लोगो है। अब मान लीजिए मैं मार्कर बना रहा हूँ और मार्कर बनाने के बाद में इस लोगो का यूज करूंगा तो ये इस कंपनी का होगा, उसके लिए मेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी, उसी को अपन लोग इसमें ट्रेडमार्क के अंदर इंक्लूड करेंगे। जो बिजनेस करने का एक मार्को होता है उसे अपन लोग ट्रेडमार्क कहते हैं, तो वो एक तरीके से इंटेंजिबली ही होता है। उसके बाद में बात की नॉमिनल अकाउंट, बाकी सारे अकाउंट जो रह गए
इन दोनों में नहीं है, वो सारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। जैसे कोई अपना एक्सपेंसेस है, परचेज किया, एक्सपेंसेस हुआ, नॉमिनल अकाउंट के अंदर लॉस एंड एक्सपेंसेस में आएगा। जैसे अपन लोगों ने रेंट पे किया, रेंट पे करोगे, एक्सपेंसेस है, परचेज अकाउंट के नॉमिनल अकाउंट के अंदर इसी में आएगा। सैलरी पेड एक्सपेंसेस है, कमीशन पेड एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंसेस है, ये सारी इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को इंक्लूड करना है नॉमिनल अकाउंट के अंदर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अंदर। यदि अपन इनकम एंड गेन की बात करते हैं तो इनकम एंड गेन के अंदर आप लोगों को यही सारी जो एक्सपेंसेस बताए थे, यदि अपनी इनकम हो, जैसे मैं मान लो सेल कर रहा हूँ, गुड्स सेल करूंगा तो मुझे इनकम होगी, तो वो किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर इनकम एंड गेन में आएगा। जैसे रेंट रिसीव कर रहा हूँ तो किस में आएगा, इनकम एंड गेन में आएगा। कमीशन रिसीव किया, किसका पार्ट हुआ, इनकम एंड गेन का। जब अपन लोगों को रिसीव हो रहा है, एक्सपेंसेस नहीं हो रहा है, पेमेंट है तो एक्सपेंसेस है, रिसीव कर रहे हो तो इनकम है, वो नॉमिनल अकाउंट का ही पार्ट होगा। आप लोगों को इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, विथ एग्जांपल आप लोग तैयार करोगे। मैं आप लोगों को क्लियर कह देता हूं, जब तक इनके आप लोगों को टाइप्स क्लियर नहीं होंगे तब तक अकाउंट समझ में नहीं आएगी। सबसे पहला प्रैक्टिकल पोर्शन या न्यूमेरिकल पोर्शन अपन बोलते हैं तो वो यहीं से स्टार्ट होता है। इसकी अच्छे से आपको तैयारी करनी है। कुछ एग्जाम्पल अपने आप लोन लेना आप लोगों को, उसके बाद देखना कि क्या वो किस कैटेगरी का हो सकता है। जैसे मैंने कहा मोहन, यस मोहन किसका होगा, पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल में नेचुरल पर्सनल। मैं कहता हूँ रिलायंस एंड रिलायंस लिमिटेड, तो ये रिलायंस लिमिटेड किसका एग्जांपल होगा, ये होगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का। यदि मैं कह दूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी तो किसका होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का। यदि मैं कह रहा हूँ बिल्डिंग तो किसका होगा, बिल्डिंग एग्जांपल होगा टेंजिबल रियल अकाउंट का। और कॉपीराइट तो इनटेंजिबल रियल अकाउंट। एंड सैलरी पेड हुआ नॉमिनल अकाउंट के अंदर लॉस एंड एक्सपेंसेस। और यदि अपन कहते हैं सैलरी रिसीव्ड तो इनकम एंड गेन का नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना। बुक्स के लास्ट में आप लोगों की स्टार्टिंग की जो एग्जांपल वगैरह दिए उनमें और अच्छे से समझा रखा है, मतलब जो एग्जांपल दिए उनको आप लोगों को चेक करना है कि आप इसको देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। बस आज के लिए इतना ही होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।